going to teach you. Now, today I'm going to show you in English one of the most important and one of the toppest topic in English, which is like I can say it is like 50% of your English. If you know this topic, you're going to rock the communication. And if you don't know this topic, then may God help you. So first of all, would like to tell you that today we are going to start our tenses. And today we are starting our first tense, which is really very important tense. Means it is like 50% of your English. Getting it? So first of all, that tense is what simple present tense. Would like to introduce you towards the tense. Now when to use, how to use, when not to use, each and everything we're going to see today. All right. So today we are starting with our tenses. As we know, today is Wednesday, and on Wednesday we are going to have tenses. Today we are going to have a very important topic, and that's what first tense of English. अब इंग्लिश के अंदर जो बोलते हैं हम लोग, वो सबसे ज्यादा मेन चीज क्या है भाई? वो टेंस है. क्या अभी हम लोग बोलते क्या है? जो मेन टेंस है, हम लोग जो बात करते हैं इंग्लिश के अंदर, वो मेन टेंसेस होता है. भूतकाल, भविष्यकाल, है क्या नहीं, वर्तमान काल. सो दिस इज व्हाट tense. So first of all, we are going to see today one of the most important tense in English, and that's what simple present tense. Simple present tense. जो भी students absent रहेंगे वो बेकार तरीके से लटक जाएंगे आज. हेलो Now, सर. yeah, कार्तिक. हाँ सर, द आर्टिकल का घेणार आहे? The article आपला पुढच्या आठवड्यात होणार. चालेल सर. ट्यूजडेला. का? नाही, काल एन घेतलं होतं म्हणून म्हणलो. हा, काल अ झाला आपला. आता नंतर पुढच्या आठवड्यात आपल्याला एन, मग नंतर त्याच्या द घेणार आपण. म्हणजे पुढच्या आठवड्यात चालू होऊन जाईल ते. थँक्यू. नक्की. Sure. Okay. So this is what I want to tell you. Today we are going to see in English most important tense, and that's what simple present tense. When do we use simple present tense? कब use करते हैं हम लोग simple present tense? Yes, who can tell me when do we use simple present tense? चालू वर्तमान काळ. Very good. चालू वर्तमान काळ. Action Okay. साधारण It's the same thing. Simple present. सर, Yes. action present. Very good. For actions in the present. Okay. Now, simple present tense is father of all tenses in English. Remember this. ये बात कभी भूलना नहीं. Point number 1. Simple present tense is the father of all tenses in English. Simple present tense is the father of all tenses in English, and it is used more than 80% in English, according to me. As I'm teaching since 2011, 2011 से मैं पढ़ा रहा हूँ. When I was just 16, and according to my experience, we use simple present tense more than 80% in English. इतना important tense है ये. अपन जो भी बात कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, ये आधे से ज्यादा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. जो भी हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, सिंपल प्रेजेंट टेंस. जो भी हम लोग सुनते हैं इंग्लिश के अंदर, ज्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज द फादर ऑफ ऑल टेंसेस इन इंग्लिश. सो इट इज द वन ऑफ द मोस्ट मैंडेटरी सेंटेंस इन इंग्लिश. दैट्स व्हाट सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस है इंग्लिश के अंदर. सो इट इज यूज्ड मोर देन 80%. नाउ व्हेन डू वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस? यूज कब करते हैं? इसका ग्रामर रूल बहुत जबरदस्त है और बहुत इजी भी है. आप लोग को झटके में समझ में आ जाएगा. नाउ व्हेन डू वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस? पॉइंट नंबर 1, वी कैन यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्शंस इन प्रेजेंट. जो चीज प्रेजेंट में चल रही है, हो रही है, उसके लिए भी अपन यूज कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जांपल, आई कम टू क्लास, आई सिट इन फ्रंट ऑफ यू, आई स्पीक इंग्लिश. ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस है. मैं बोलता हूँ इंग्लिश आपके सामने. नेक्स्ट वन, fact. We are using simple present tense for facts as well. What do you mean by facts? Hakikat. Fact means what? Hakikat. We are using simple present tense for facts as well. For example, sunrises, sunsets, hakikat hai. Truth prevails at the end, hakikat hai. Moon lights, moon chamakta hai, hakikat hai. Sun shines, hakikat hai. Yes or no? Sun rises, sunsets. Suraj ugta hai, doobta hai. Yes or no? So it is also what? Facts. Alive human breathe. It is also facts. So for facts as well, we are using simple present tense. Next, opinions. We use simple present tense for opinions as well. Opinion मतलब नहीं, माझे संदर्भात, मेरे ख्याल से, मेरे मुताबिक. ओपिनियन देने के लिए, अपनी राय देने के लिए, सलाह देने के लिए भी अपन यूज करते हैं simple present tense. For example,
he is good in my opinion, simple present tense. That's right, in my opinion, simple present tense. He is correct, he is incorrect, means that sentence is incorrect. He is right, that's true. It's wrong, it's false. We are using for simple present tense opinion. Opinion के लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, simple present tense. Next one, belief. Belief मतलब यानी यकीन, यकीन, विश्वास. उसके लिए भी हम लोग यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. विश्वास के लिए भी अपन क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जांपल, आई बिलीव इन द गॉड. मैं बिलीव रखता हूँ. आई बिलीव ही इज गुड. मैं यकीन करता हूँ ये अच्छा है. आई बिलीव शी इज गुड. मैं बिलीव करता हूँ वो अच्छी है. So for belief also we are using simple present tense. Now the last but not the least, that's what, routine. We are using simple present tense especially for routine. सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर रूटीन. रूटीन का मतलब क्या होता है, रिपीटेड एक्शन. रूटीन का मतलब होता है रिपीटेड एक्शन. जब कोई काम बार बार होता है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्लास को आते हैं, रूटीन है. डेली सोते हैं, रूटीन है. खाना खाते हैं, रूटीन है. सुबह उठते हैं, रूटीन है. ब्रश करते हैं, रूटीन है. नहाते हैं, रूटीन है. कॉलेज जाते हैं, रूटीन है. लेक्चर अटेंड करते, रूटीन है. स्टडी करते, रूटीन है. खाना खाते, रूटीन है. पानी पीते, रूटीन है. सो वी आर यूजिंग एस्पेशली सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर रूटीन. सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज फॉर एस्पेशली रूटीन. रूटीन के लिए अपन यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये मेन चीज है इसका. सिंपल प्रेजेंट टेंस वी आर यूजिंग एस्पेशली फॉर रूटीन. मेन अपन रूटीन के लिए यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. गेटिंग इट? पॉइंट नंबर 1, रूटीन के लिए अपन यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो रूटीन क्या होता है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ. आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ. आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ. आई स्पीक इंग्लिश, ये भी मेरा रूटीन है. आई लर्न, आई डेली रीड अ बुक, ये भी मेरा रूटीन है. आई हैव अ शावर, मैं डेली एक शावर लेता हूँ, ये भी मेरा रूटीन है. आई हैव लंच, आई हैव ब्रेकफास्ट, आई हैव डिनर, खाना खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, रहता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, जो कुछ भी है, एवरीथिंग इज रूटीन. ये सब मेरा रूटीन है. यस नो? सो वी आर यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस एस्पेशली फॉर रूटीन. सबसे ज्यादा हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं किसके लिए भाई, रूटीन के लिए यूज करते हैं. सबसे ज्यादा अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं रूटीन के लिए, भूलना नहीं. ओके, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, दूसरी बात. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए मैंने आप लोग को बोला था, आप लोग को याद करना है, आपको लर्न करना है वर्ब्स. जिसका सबसे ज्यादा वर्ब्स बेस्ट रहेगा वो बंदा जीत जाएगा, और जिसका वर्ब्स नहीं रहेगा वो बंदा हार जाएगा. He could not speak English, sorry to say this. भारी इंग्लिश नहीं बोल पाएगा वो, जिसके बारे में वर्ब देंगे. ओके, नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाना कैसे भी हम लोगों को. अब हम लोग आज वो सीखने वाले हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनता कैसे है, उसका टेंसेस बनाना कैसे है वगैरह. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस वी आर यूजिंग फॉर एस्पेशली फॉर रूटीन. खासकर अपन रूटीन के लिए यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ वी हैव वर्ब एग्रीमेंट रूल फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस. वहां पर एक रूल है जिसका नाम है वर्ब एग्रीमेंट रूल. सिंपल प्रेजेंट टेंस एक रूल के ऊपर चलता है, वो रूल का नाम है वर्ब एग्रीमेंट रूल. क्या आप लोग सब मुझे सुन रहे हैं? आर यू लिसनिंग मी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. नहीं तो मालूम Yes, पड़ रहा है sir. खाली मैं बोल रहा हूँ मालूम पड़ेगा. लेक्चर दिया मैंने किसको दिया, क्या मतलब? नहीं सुन रहे हैं. Good. So point number 1, there is a rule that's called verb agreement rule. Simple present tense का एक रूल है, उसको अपन बोलते हैं verb agreement rule. अब verb agreement rule मतलब यानी क्या है, the verb runs in the whole rule. यहाँ पे जितना भी पूरा रूल है वो सब सिर्फ एक ही चीज के ऊपर चलता है, और वो चलता है verb के ऊपर. verb का मतलब होता है क्रिया. verb का मतलब क्या होता है, क्रिया, एक्शन. verb means what, एक्शन, जिसको अपन बोलते हैं फेल, काम. verb means what, क्रिया. ओके, एक्शन. वो एक्शन के ऊपर अपना पूरा रूल चलने वाला है यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि वर्ब है, फॉर एग्जांपल गो मतलब यानी जाना, करेक्ट. कम मतलब यानी आना. फॉर एग्जांपल स्लीप, सोना. नेक्स्ट लर्न, पढ़ना, याद करना. स्टडी, स्टडी करना. यस नो? और फॉर एग्जांपल स्लीप, टीच, टीच मतलब पढ़ाना. प्ले, खेलना, एटसेट्रा. ये सब क्या अपना वर्ब्स है, करेक्ट. वी आर गोइंग टू यूज देयर verb agreement rule in simple present tense. Point number 1. अब यहाँ पे verb agreement rule क्या बोल रहा है आप लोग को वो ध्यान देना है. As you can see the table here for simple present tense. Simple present tense का एक टेबल आपके सामने है. अब वो टेबल के अंदर पूरा रूल है. अब वो रूल क्या बोलने वाला है ध्यान देना है आप लोगों को. verb agreement rule बोलते हैं इसको. Now in English we have noun and pronoun. Noun and pronoun. पहले अपन देखेंगे noun and pronoun, उसके बाद में अपन जाएंगे आगे. So
फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय नाउन? मैं स्लो इसके लिए जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को डिटेल में समझना चाहिए ईच एंड एवरीथिंग जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको. अगर आपको नहीं समझा तो आपको नहीं आएगा. अच्छे अच्छे टीचर्स लोग को ये टेंस के अंदर प्रॉब्लम होता है. क्यों भाई? क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस करते नहीं और उन लोगों को पता ही नहीं कब कौन सा कहाँ यूज करना है. बड़े बड़े लोगों को मैंने प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से मिस्टेक करते हुए देखा है. बड़े बड़े लोगों को. आप लोग वो मिस्टेक मत कीजिए प्लीज. ओके. नाउन. अब ये पूरा जो नाउन मतलब है नहीं, नेम. नाउन मीन्स नेम. पॉइंट नंबर 1. नाउन मीन्स नेम. नेम ऑफ अ पर्सन. नेम ऑफ अ प्लेस. नेम ऑफ एन animal. Name of a thing. एनिमल. And name of an idea. Okay. Name of a Yes. person. Person के अंदर आएगा. For example, जैसे मैंने आपको कल भी बताया, uncle person है, boy person है, next teacher person है, next doctor person है, aunt person है, uncle person है, next for example lawyer person है. So this is what everything is called. ये क्या है? सब noun है. ये सब क्या है? Noun है. All right. Noun. Next person. Place. Place में for example market. Noun है. Why? Place है. Correct. School. Place है. Noun है. Next college. Place है. Noun है. Next one. Hospital. Place है. Noun है. Next bank. Place है. Noun है. Etc. Next one. Animal. For example cats. Animal है. Noun है. Next one. Dog. Animal है. Noun है. Next one. Snake. Animal है. Noun है. Next. Tiger. Animal है. Noun है. Correct. For example leopard. Animal है. Noun है. Correct. Next thing मतलब है नहीं, चीज, वस्तु. For example mobile. चीज है. Noun है. Bottle. चीज है. Noun है. Next screen. चीज है. Noun है. Hair. चीज है. Noun है. Nail. चीज है. Noun है. Etc. नेक्स्ट आइडिया के अंदर क्या आएगा? आइडिया भी पहली बात तो बोलते किसको है? किसको बोलते हैं भी आप? आइडिया. हम लोग आइडिया मतलब है नहीं ऐसी चीज जिसको हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं. वी कैन जस्ट थिंक ऑफ द थिंग. वी कांट टच इट. वी कांट सी इट. उसको अपन देख भी नहीं सकते और उसको अपन टच भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लव. अभी अपन लव को देख सकते हैं क्या? अपन बोलेंगे क्या? देखो लव भाग के आ रहा है, वो देखो गली में भाग के गया लव. नो, वी कांट से लाइक दिस. सेम केस हेट. अब हेट को हम लोग देख सकते हैं क्या? नो. अभी हम लोग बोलेंगे अरे बाप रे क्या गरम हेट. ओ माय गॉड. सेम केस ऑनेस्टी. ऑनेस्टी. अभी ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी. अभी ईमानदारी दिखती है क्या? गुड्डू आपकी ईमानदारी बताओ जरा मेरे को. बता सकते हैं आप लोग? नो. तो ये क्या है? आइडियाज हैं. सेम केस ब्रेवरी. हिम्मत. बहादुरी. बहादुरी दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते. इट इज लाइक एन आइडिया. So what do you mean by noun? Noun means name, name of a person, place, animal, things and idea. Okay? इसको हम लोग बोलेंगे noun. Next आता है pronoun English. अब English के अंदर दूसरी चीज आती है pronoun. अब pronoun रहता क्या है? ये एक ही बात याद रखना है. Noun and pronoun both are the equivalents. मैंने क्या बोला? ध्यान देना है. Noun and pronoun both are the same. Noun and pronoun both are the hello. Noun and pronoun both are the Same. correct. भूलना नहीं है. Noun and pronoun both are the same. Noun क्या है भाई? Noun means name of a person, place, animal, things and ideas. And pronoun क्या होता है? Pronoun English में 7 है. पुराने जमाने में सिर्फ इंग्लिश में 3 pronouns थे. सोचो कितना टफ था इंग्लिश पहले. आज का इंग्लिश कितना इजी है. पुराने जमाने में इंग्लिश में 3 pronoun थे सिर्फ. और वो क्या था? thou, thee and thy. आज के जमाने में इंग्लिश इतना इजी हो गया कोई भी बोल सकता है. एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश. जो भी चाहेगा कि मुझे इंग्लिश बोलना है वो इंग्लिश बोल सकता है. एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में 7 प्रोनाउंस है आज के जमाने में. आई, वेट अ मिनट. आई, ही, शी, इट, यू, वी एंड दे. आज के जमाने में इंग्लिश में 7 प्रोनाउंस है. आई, ही, शी, इट, यू, वी एंड दे. 7 प्रोनाउंस है इंग्लिश में. आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे. अब ये प्रोनाउंस 7 क्यों हैं?
इतने ही है, क्योंकि इसके अलावा नाउन्स आपको मिलेंगे नहीं. नाउन एंड प्रोनाउन बोथ आर द सेम. ये मैंने क्यों बोला हूँ उसकी वजह भी मैं बताता हूँ. पुराने जमाने में सिर्फ 3 था. Thou wants to do the homework. मैं होमवर्क करना चाहता हूँ. समझ में नहीं आता था. Thou have to pay the fee. आपको फी पे करना है. Die. Thee has to do these things. उसको ये काम करना पड़ेगा. तो वहां पे समझ में नहीं आता था कौन किसको क्या बोल रहा है. तो पुराने जमाने में सिर्फ 3 प्रोनाउंस थे. आज के जमाने में 7 है. आज के जमाने में 7 प्रोनाउंस हैं. एंड नाउन्स एंड प्रोनाउंस बोथ आर द सेम. भूलना नहीं. मैं बार बार बोल रहा हूँ. क्यों? क्योंकि आप लोग को ये चीज याद रखना है. नाउन एंड प्रोनाउन बोथ आर द सेम. दोनों भी सेम है. दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है. सो प्रोनाउन क्या होता है? आई. आई मतलब मैं. आई मतलब मैं. ही मतलब वो लड़का. वो लड़का. शी मतलब वो लड़की. वो लड़की. इट मतलब, अब इट किसके लिए यूज होता है? हु कैन टेल मी? इट किसके लिए यूज होता है? थिंग्स के लिए. थिंग्स. हाँ. अब अपने यहाँ पे सबसे बड़ा मिस्टेक ये करते हैं. आपका प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर. उसके अंदर प्रॉब्लम है आपके टीचर्स का. उसके अंदर प्रॉब्लम है अपने सिस्टम का. सॉरी टू से दिस. अब अपने यहाँ पे टीचर ने क्या बोला था? इट यूज होता है बेजान चीज के लिए, मतलब यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. करेक्ट? Yes, sir. गलत. सबसे बड़ा गलत है ये. इट बेजान चीज के लिए यूज नहीं होता है. इट वी यूज फॉर एनिमल्स, थिंग्स, बेबी एंड प्लेसेस एंड आइडियाज. हैव अ लुक हियर. इट वी आर यूजिंग फॉर एनिमल्स. अभी एनिमल्स के अंदर तो जान होती है. लिविंग एनिमल तो, यस नो? एनिमल्स के अंदर जान होती है, मतलब वो लिविंग क्रीचर है. उसके लिए भी हम लोग इट यूज कर सकते हैं. इट किसके लिए यूज करते हैं? फॉर एनिमल्स. अब हमको मालूम है कि ये ही है कि शी है, नहीं मालूम. उसके लिए हम लोग इट यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, एनिमल्स के लिए इट यूज कर सकते हैं. थिंग्स के लिए, मोबाइल के लिए. अब मोबाइल के लिए ही शी बोलेंगे क्या हम लोग? नहीं. सो वी कैन से इट. इट हम लोग चीजों के लिए यूज करते हैं. इट फॉर एग्जाम्पल कर्टन, वॉल, हेयर, आई, स्पीकर, लैपटॉप, डेस्क, बेड, शीट, वॉल, कबर्ड. ये सब चीजें हैं. फॉर थिंग्स वी आर गोइंग टू यूज देयर इट. डॉग, कैट, कैटरपिलर, स्नेक, लायन, डायनासोर, ये सब एनिमल्स है. उसके लिए भी इट यूज करेंगे. नेक्स्ट वन, बेबी के लिए भी हम लोग इट यूज करेंगे. बेबी के लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे? इट. अब बेबी को हम लोग को मालूम है कि बेबी ही है कि शी है? नहीं दिखता है. समझ में नहीं आता है बेबी ही है क्या शी है. सो बेबी के लिए भी हम लोग यूज करेंगे इट. नेक्स्ट वन, प्लेसेस. प्लेसेस के लिए भी हम लोग यूज करेंगे इट. फॉर एग्जाम्पल मार्केट, उसके लिए क्या यूज करेंगे? ही शी? नहीं. बैंक, क्या यूज करेंगे? ही शी? नो, इट यूज करेंगे. आइडियाज के लिए भी हम लोग यूज करेंगे इट. आइडिया के लिए फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग बोल सकते हैं लव, उसको इट बोल सकते हैं. हेट, उसको इट बोल सकते हैं. ब्रेवरी, उसको इट बोल सकते हैं. एनिमल्स, थिंग्स, बेबी एंड प्लेस के लिए यूज करेंगे इट. सो पॉइंट नंबर 1, आई. आई मतलब मैं. आई म्हणजे मी, मैं. ही मतलब वो लड़का. वो लड़का, तो मुलगा. शी मतलब वो लड़की, ती मुलगी. है का नाही? एंड इट यूज करतात आपण कशासाठी? एनिमल्स, थिंग्स, बेबी एंड प्लेसेस एंड आइडियाज. ओके. नेक्स्ट वन, यू. यू म्हणजे तुम्ही, आप. नेक्स्ट, वी मतलब आम्ही, अपन, हम दोनों, हम, हम. नेक्स्ट, दे मतलब वो लोग, ते लोग. वो लोग मतलब यानी दे. ओके. अब नाउन एंड प्रोनाउन दोनों भी सेम है. ऐसा मैंने क्यों बोला था? क्योंकि आई मतलब मैं, तो मैं किसके लिए यूज होता है? पर्सन के लिए यूज होता है कि नहीं? हेलो. आई किसके लिए यूज होता है? Yes, sir. पर्सन के लिए यूज होता है. करेक्ट. तो नाउन के अंदर पर्सन आ रहा है कि नहीं? नाउन के अंदर पर्सन आ रहा है कि नहीं? Yes, यस. आई पर्सन के लिए यूज हो रहा है. मतलब प्रोनाउन एंड नाउन दोनों भी सेम है. यस नो? प्रोनाउन और नाउन दोनों भी सेम है. नेक्स्ट, ही मतलब, ही म्हणजे person. पर्सन हो जाएगा, मतलब वो लड़का. लड़का मतलब है नहीं, पर्सन हो जाएगा, बॉय. करेक्ट. ही प्रोनाउन है एंड नाउन. नेक्स्ट, शी मतलब वो लड़की. शी मतलब वो लड़की, ती मुलगी, पर्सन है. यस नो? पर्सन में आएगा Yes, sir. नाउन एंड प्रोनाउन में आएगा शी. तो नाउन एंड प्रोनाउन बोथ आर द Same. सेम. बोथ आर द सेम. नेक्स्ट वन, इट. इट किसके लिए यूज होता है? एनिमल्स, थिंग्स, बेबीज एंड प्लेसेस. इट यूज करता है प्लेस के लिए. यस, नाउन है. एनिमल के लिए नाउन है. थिंग के लिए नाउन है. आइडिया के लिए नाउन है. प्रोनाउन इट, नाउन, एनिमल्स, थिंग्स, बेबी, प्लेस. यस नो? Yes. तीनों के लिए यूज हो रहा है. मतलब नहीं, Yes, sir. इट, नाउन एंड प्रोनाउन बोथ आर द सेम. नेक्स्ट वन, यू. यू मतलब आप. यू मतलब आप, तुम्ही. है का नाही? तुम्ही. आता तुम्ही कोण? तुम्ही कोण आहेत?
person, पर्सन है का नाही तुम्ही कोण आहेत पर्सन आहेत येस नो नेक्स्ट Yes, वन sir. वी मतलब आम्ही हम लोग अपन है का नहीं अभी अपन कौन है वी person, पर्सन है नाउन क्या है पर्सन है वी क्या है प्रोनाउन है सो नाउन एंड प्रोनाउन बोथ आर द same, सेम बोथ आर द सेम ओके नेक्स्ट वन दे मतलब वो लोग दे म्हणजे ते वो लोग पर्सन के लिए यूज होता है ये से नो एम आई राइट सो दे मतलब वो पर्सन के लिए यूज होता है सो नाउन एंड प्रोनाउन बोथ आर द सेम इन इंग्लिश नाउन भी और प्रोनाउन भी दोनों भी सेम इंग्लिश के अंदर एनी डाउट्स यस No, sir. ओके No, नाउ sir. हियर द रूल इज अब यहाँ पे रूल बोल रहा है हमारा रूल क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए नाउन एंड प्रोनाउन दोनों में से कुछ भी लेना है प्लस वर्ब क्या होता है क्रिया होती है वर्ब मतलब यानी क्रिया मतलब एक्शन ओके नाउन एंड प्रोनाउन वर्ब प्लस एस और ई एस नाउन एंड प्रोनाउन वर्ब प्लस नो एस नो ई एस ये यहाँ पे रूल है अब प्रोनाउन के अंदर दो कैटेगरीज आते हैं प्रोनाउन के अंदर दो कैटेगरीज आते हैं इंग्लिश में प्रोनाउन के दो कैटेगरीज हैं सिंगुलर एंड प्लूरल अब इसके अंदर कुछ सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं और कुछ प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं इंग्लिश के अंदर प्रोनाउंस कितने 7 हैं राइट वी हैव 7 प्रोनाउंस इन इंग्लिश करेक्ट वी हैव 7 प्रोनाउंस इन इंग्लिश उसके अंदर दो टाइप के प्रोनाउन है सिंगुलर प्रोनाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन आई क्या है सिंगुलर के प्लूरल है उसको छोड़ देते हैं चलो ही कौन है ही सिंगुलर के प्लूरल है ही म्हणजे सिंगुलर करेक्ट ऑब्वियसली सिंगुलर है ही म्हणजे तो मुलगा एक लड़के के लिए बोल रहे कि नहीं अपन फॉर एग्जाम्पल ही इज शिवदास तो अभी शिवदास कितने 4 है क्या नहीं एक है सो ही इज सिंगुलर प्रोनाउन नेक्स्ट वन शी मतलब वो लड़की इट इज ऑल्सो singular, इट इज ऑल्सो सिंगुलर करेक्ट शी मतलब वो लड़की फॉर एग्जाम्पल शी इज चैताली शी इज चैताली अब चैताली कितने 4 है क्या नहीं एक है यस नो एक है सो शी यूज कर रहे हैं अपन किसके लिए सिंगुलर के लिए करेक्ट नेक्स्ट वन इट अब इट किसके लिए यूज करते हैं हम लोग सिंगुलर सिंगुलर के लिए इट मतलब एक एनिमल एक प्लेस एक आइडिया एक चीज एक बेबी करेक्ट वी यूज एनिमल इट फॉर एनिमल थिंग्स बेबी प्लेसेस एंड आइडिया फॉर एग्जाम्पल इट इज अ स्पीकर ये एक स्पीकर है तो एक के लिए क्या मैं यूज कर रहा हूँ इट क्या यूज कर रहा हूँ मैं इसके लिए एक के लिए इट यूज कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल इट इज अ मोबाइल तो मैं एक के लिए क्या यूज कर रहा हूँ इट इज अ मोबाइल ये एक मोबाइल है सिंगुलर है ओके नेक्स्ट वन यू क्या होता है सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है फॉर एग्जाम्पल यू आर अ स्टूडेंट मैं किसको बोल रहा हूँ ये अंकित को बोल रहा हूँ मैं अंकित यू आर अ स्टूडेंट तो अंकित क्या हो गया सिंगुलर हो गया और मैं भी आप सब लोगों को बोल रहा हूँ ऑल ऑफ यू आर माई स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू आर माई स्टूडेंट्स तो यू कौन हुआ singular and plural, सिंगुलर एंड प्लूरल Singular and बट plural. करेक्ट यू सिंगुलर भी हुआ एंड प्लूरल भी हुआ बट यू को हमेशा प्लूरल कंसीडर करते हैं क्या कंसीडर करते हैं यू को प्लूरल कंसीडर करते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या बोलते हैं हाउ Plural. आर यू अभी अपन क्या बोलते हैं हाउ आर यू कभी हम लोग ऐसे बोलते हैं क्या हाउ इज यू अगर कोई ऐसा बोल रहा है कोई देड़शाना रहेगा कॉन्वेंट स्कूल का तो वो सबसे बड़ा गलत बोल रहा है वो गलत बोल रहा है वो हाउ इज यू दिख रहा है आप लोग को अंडरलाइन दे रहा है उसके नीचे वो इट इज गिविंग अंडरलाइन व्हाई बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग वी मस्ट से हाउ आर यू एंड वी यूज आर फॉर आर किसके लिए यूज करते हैं plural, एग्जैक्टली वेरी गुड आर वी आर यूजिंग फॉर प्लूरल मतलब यानी यू को क्या कंसीडर करना है हम लोगों को ऑब्वियसली प्लूरल plural, कंसीडर करना है समझा मैं आप लोग को डिटेल में इसके लिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को आगे तकलीफ नहीं होना चाहिए सो प्लीज ध्यान दीजिए खेलते मत बैठिए यहाँ पे ध्यान देना है ओके सो यू इज प्लूरल फॉर एग्जाम्पल यू आर माई स्टूडेंट्स आप सभी मेरे स्टूडेंट्स है तो यू मतलब आप तो यू क्या हो गया प्लूरल हो गया ना आप एक से ज्यादा है ना 9 स्टूडेंट्स है फिलहाल में यस नो सो यू आर माई स्टूडेंट्स आप प्लूरल हो गया यू नेक्स्ट वन वी म्हणजे ammi, आमी They. ठीक है ना हम दोनों तो अभी मैं कम से कम 2 लोग रहेंगे तो वी बोलेंगे तो वी क्या हो गया प्लूरल प्रोनाउन है करेक्ट वी मतलब प्लूरल प्रोनाउन है करेक्ट यस नो yes sir, वी Yes, प्लूरल sir. प्रोनाउन है वी मतलब हम लोग नेक्स्ट वन दे मतलब बचा कौन अभी दे मतलब वो लोग मतलब यानी कम से कम 2 लोग रहेंगे करेक्ट फॉर एग्जाम्पल दे आर फ्रेंड्स हु किरण एंड अंकित आर फ्रेंड्स दे आर फ्रेंड्स मतलब यानी वो फ्रेंड्स हैं तो वो मतलब यानी दे
समझ ला? हाँ, सो ही शी इट सिंगुलर में आता है, यू वी दे प्लूरल में आता है, आई सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है सर। ऑब्वियसली, कितना सिंपल सी बात है, कितना सोच रहे हैं आप लोग, सिंगुलर है ना, आई सिंगुलर है, आई ऑब्वियसली सिंगुलर में आता है हमेशा। आई मतलब मैं, अब मैं के 4 लोग हूं क्या? नहीं, आई सिंगुलर है, बट लेकिन 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 आई हमेशा सिंगुलर में आता है, आई सिंगुलर में आता है हमेशा, बट सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक फंडा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक फंडा है। अब वो क्या बोल रहा है रूल, यहाँ पे ध्यान दीजिए। नाउन एंड प्रोनाउन रूल है उसका, while making sentences with he she it थर्ड पर्सन सिंगुलर, he she it सिंगुलर है कि नहीं? he सिंगुलर मतलब एक लड़का, she एक लड़की सिंगुलर है, it एक चीज, एक एनिमल, एक प्लेस सिंगुलर है, he she it सिंगुलर, verb plus s or es, while making sentences with simple present tense, while making sentences with simple present tense, he she it verb plus s or es we are going to put, and I you we they plural वर्ब प्लस नो एस नो ई एस, वर्ब के अंदर एस और ई एस नहीं लगेगा, आई यू वी दे वर्ब प्लस नो एस नो ई एस। यू प्लूरल है मुझे मालूम है, यू प्लूरल के लिए यूज होता है, वी मतलब हम लोग प्लूरल है, दे मतलब वो लोग प्लूरल है। आई प्लूरल कैसे हुआ? आई प्लूरल कैसे हुआ? उसने लिखा है आई यू वी दे प्लूरल, आई प्लूरल कैसे हुआ? एनी आंसर? आई प्लूरल कैसे हुआ? How I is plural? The person who will give me the answer will get the reward of 1000 rupees. उसके फी में से 1000 रुपीज कट, जो भी बंदा मेरे को अभी आंसर देगा। How I is plural, इसके लिए बोला था यहाँ पे ध्यान दो, अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, 1000 रुपए जिंका चला दिवाली ऑफर। Tell me how I is plural. I know I is singular, but यहाँ पे क्या बोला है उसने? I, you, we, they, plural, verb plus no s no es. जब कोई भी आप लोग सेंटेंस बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, you, we, they and I प्लस प्लूरल, verb plus no s no es, वहाँ पे ये s और es नहीं लगेगा। How I is plural. He सिंगुलर है मतलब एक लड़का, she सिंगुलर है एक लड़की, it सिंगुलर है एक चीज, you मतलब आप लोग प्लूरल है, we मतलब हम लोग प्लूरल है, they मतलब वो लोग प्लूरल है। I प्लूरल कैसे हुआ है? Get me the answer and get the reward of 1000 rupees. Any answer? किसी के पास में आंसर है? तर तिथे थर्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर लिहिलंय त्याच्या रूल मध्ये, आणि आय थर्ड पर्सन येत नाही तिथे रूल मध्ये सगळं लिहिलंय. हाँ, तर आय तर थर्ड पर्सन येत नाही ना, आय तर आधी फर्स्ट पर्सन असेल ऑलवेज। आय सर प्लूरल। यस ओसामा। सर सिंगुलर है ना सर उसमें मेरे वर्ब भाई मैं जो पूछ रहा हूँ, आई प्लूरल कैसे हुआ? हाउ आई इज प्लूरल? यहाँ पे क्या है भाई, आई सिंगुलर में आता है मुझे ही मालूम है, बट यहाँ पे प्लूरल लिखा हुआ है आई, आई यू वी दे प्लूरल वर्ब प्लस एस और ईएस, ये प्लूरल प्रोनाउंस है। यस प्रदीप। जब भी अपन प्लूरल में जब भी अपन सिंगल बनाते मतलब आई यूज टू गो, आई हैव टू डू, जब भी अपन बनाते तब उसके पीछे ईएस नहीं लगता सर। क्या बोले? जब भी अपन सेंटेंस बनाते आई में कि आई हैव डन, आई यूज टू गो, आई हैव टू डू दैट, ऐसे जब बनाते तो उस टाइम में अपने को लगता नहीं सर सिंगुलर में कुछ। तो सिंगुलर हुए ना, फिर अपन अपने बारे में बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कार, मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ। आई हैव डन माई होमवर्क, मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ, तो मैं तो अकेला हूँ, सिंगुलर हूँ। आई तो सिंगुलर हो गया, आई प्लूरल कैसे हुआ वो पूछ रहा हूँ मैं। आई का प्लूरल फॉर्म देर कब से हुआ मैडम? आई का प्लूरल फॉर्म देर कब से हुआ? चलो रिवॉर्ड डबल, डबल नहीं रिवॉर्ड ट्रिपल, 3000 रुपीज ऑफ। Hello, sir. या मैडम। I is based on the number of persons only. फॉर एग्जाम्पल आई बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए आई कैसे लगाएंगे? आई का मतलब तो मैं होता हूँ ना।
एनीवन एल्स? सर आई में सर एस और ईएस नहीं लगता सर इसके लिए। आई में एस और ईएस नहीं लगता? कैसे नहीं लगता है? मतलब मैं समझा नहीं। दे में जब कहाँ सर लगता है? सर आई प्लेज नहीं बोलते हैं ना, लाइक दैट। हाँ ही वो तो प्लेस रूल है ना, बोलते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो रूल है। तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं कि आई प्लेज नहीं बोलते, प्ले बोलते, क्योंकि आई प्लूरल है। तो प्लूरल क्यों है आई? कब हो सकता है प्लूरल? ओके सर या क्योंकि सर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में होता है ना सर। अब आपको लास्ट ऑफर है, रिमेनिंग फी आपका जितना ही बाकी है पूरा फी आउट, 50% ऑफ आपका फी हो जाएगा। जो जो बंदे लोगों ने फी नहीं पे किया और जिसने पे कर दिया है कल, थैंक यू सो मच। जिसने फी पे कर दिया है उन लोग का फी रिटर्न मिल जाएगा। रिमेनिंग 50% जो फी आप लोग का बाकी है आप लोग को रिटर्न मिल जाएगा। I sound the first person singular pronoun. I uses verb that sound plural. Example: I have an idea, but the singular she has an idea. गूगल बाबा नहीं दे सकते वो जो मैं दे सकता हूँ। यस, एनीवन एल्स? आज मैं आप लोग को एक चीज सिखाना चाहता हूँ, बताऊं? आज आप लोग के सामने एक ऑफर रखा था। आज मैंने आप लोग के सामने ऑफर रखा था 5500 रुपीज का, जो कि आप लोग का 50% फी है। आपका फी 11,000 है, उसका 50% आप लोगों से मैंने कुछ लोगों से लिया था, कुछ लोगों का प्रॉब्लम था। 50% आप लोगों का फी जो था 5500 है। 5,500 रुपये में मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन पूछा था, आप लोग को उसका आंसर नहीं आ रहा है। आप लोग का प्रॉब्लम नहीं है, मालूम है आप लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए, पर मैं आप लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी जगा रहा हूँ। याद रखो, मैंने आज 5,500 रुपये आप लोगों को दिया था एक क्वेश्चन के ऊपर। फ्यूचर में 5,500 करोड़ की ऑफर आ सकती है, 5.5 लाख की ऑफर आ सकती है, 5.5 करोड़ की ऑफर आ सकती है। इसके लिए सोते नहीं रहना है, कान खुले आंख खुले सब चालू रखना है। अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस। बाय द वे, किसी के पास आंसर मुझे दिख नहीं रहा है, मैं आंसर देता हूँ आप लोग को। जब अभी आप लोग को आंसर दूंगा तो आप लोग बोलेंगे अरे यार शिट, आप लोग अपनी दुनिया पहुंच डालेंगे। Sir, यस the यस, plural form of I is we, and we is plural. That's why I is plural. आई का प्लूरल वी कैसे होता है? अच्छा मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, बट नहीं, वो आंसर नहीं है। आई का मैडम बोल रही है आई का प्लूरल वी होता है। मैंने पूछा आई प्लूरल कैसे? वी प्लूरल तो है ही, वो तो मुझे पता है, बट आई प्लूरल कैसे है? We में I भी आते हैं ना सर? वेरी नाइस, बट बाय द वे मैडम, आपका टैलेंट रियली अमेजिंग है। मीन्स आई जस्ट लाइक इट दैट यू आर जस्ट thinking a lot, you imagine a lot and you go very amazing. I just really like it. नाही तर आपल्या इधर के लोक, आपल्या इकडचे लोक, मला काय करायचंय हो, तुम्हाला पैसे दिलेत नाही माझ्या पप्पांनी, तुम्ही सांगा की आता. हो बघा आम्हाला विचारताय, हा सांगा तुम्ही, काय शिकायला आलो नाही मी? अरे मेरे को मालूम है शिकायला आलोय, बट मैं आप लोग का दिमाग खोल रहा हूँ. सो बाय द वे, ऑल इन्वेंट, किसी के पास में आंसर नहीं है, 5,500 रुपए गेले. ओ माय गॉड. अभी जब आंसर मालूम पड़ेगा आप लोग, लड़की लोग तो तोड़ेंगे चूड़ी. ओ माय गॉड, गेला रे तो 5,500. और लड़के लोग क्या करेंगे? काय रो हे तंबाखू सोड, जाऊ द्या मरू दे, काय तंबाखू खात बसले आपण इथे, तर जायचं. आपण ते आय हॅव म्हणजे यू हॅव, वी हॅव, दे हॅव ते यूज करतो, ते तेव्हा आय पण यूज करतो ना, आय त्याच्यासोबतच यूज करतो, आणि सिंग्युलर मित्रा, साठी हॅव यूज करतो ना. तसा नहीं, ते पुढचे थे, वो रूल है उसका, वही तो मैं बता रहा हूँ. ऐसा क्यों है? तो आई प्लूरल कैसे है? अब यहाँ पे ध्यान देना है सब लोगों ने. 5,500 रुपए खोए आज आप लोगों ने. आप लोग को दर्द होना चाहिए, नहीं हो रहा है देन मे गॉड हेल्प यू. चलो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ. सॉरी। अब ध्यान देना है प्लीज मित्रों, भाइयों बहनों, ध्यान देना है. मैं आज आप लोगों को एक चीज बताने जा रहा हूँ. अभी अपना फिलहाल में एक दोस्त है, कौन है वो? गुड्डू.
आया था वापस चले गया, आई डोंट नो व्हाई। गुड्डू अभी सुबह सुबह क्या करा, ऐसे उठा, अब अब्बा ने लाता धाड़ कर जा रहा है, पेपर आण, हा लाने जा रहा हूँ। काय बोलायचं आपल्या इथं पण काय ते बारिशमुळे पावसामुळे काय ते सगळं झालंय। सो बाय द वे सॉरी, कंटिन्यू करते हैं। अभी गुड्डू जो है अपना दोस्त, बहुत अच्छा लड़का है। सुबह में उठा, रात भर पबजी खेला, सुबह में उठा लेट उठा, अब्बा ने लाता धाड़ चलो जा रहा हूँ, पेपर ले गया, हाँ चलो ना यार। अभी मुंह धोया नहीं, कुछ नहीं, ऐसे जा रहा है। पेपर वाले के पास, ए पेपर दे यार, सकाळ। अब गुड्डू ने देखा तो वहां पे लाल कलर में लिखा हुआ था आई विल बीट अमेरिका। तो गुड्डू की आंखें बीके सब खुल गई, अरे टू हेल विथ नींद बिन गई भाड़ में। अरे वो दे पेपर दे, अरे सगळे ते सकाळ बिकड जाऊ दे, ते देते ते पेपर दे। क्योंकि गुड्डू की नजर कहाँ गई, इसके ऊपर, आई विल बीट अमेरिका। ओ माय गॉड, मैं अमेरिका को मारूंगा। कौन सा शेर आया मार्केट के अंदर जो अमेरिका को मारने वाला है? सेट बाय द चाइनीज प्रेसिडेंट, सेट बाय द चाइनीज प्रेसिडेंट। ये किसने बोला? चाइना के प्रेसिडेंट ने बोला आई विल बीट अमेरिका, मैं अमेरिका को मारूंगा। अब मुझे एक बात बोलिए प्लीज, आई विल बीट अमेरिका, इसने बोला आई विल बीट अमेरिका, यहाँ पे आई किसके लिए यूज किया गया है? प्लूरल। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या वो चाइना का प्रेसिडेंट अकेला मारने के लिए जाएगा बॉम्ब बांध के, चाइनाला मार अमेरिकेला मारायला आलो मी? नहीं, एक्चुअली वो क्या बोल रहा है, आई विल बीट अमेरिका मतलब ही नहीं, हमारी आर्मी अमेरिका को मारेगी, दैट आई इज यूज्ड फॉर द आर्मी। और अमेरिका की, चाइना की आर्मी के अंदर 26 लाख लोग हैं। ओ माय गॉड, तो वहां पे आई किसके लिए यूज हुआ है? आर्मी के लिए यूज हुआ है। अकेला चाइनीज प्रेसिडेंट के लिए यूज हुआ क्या? सर 5:30 गेले। आज मी जेवण बिवण काय नाही करणार, 5:30 गेली माझी। नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, सॉरी। आई विल विन द वर्ल्ड कप, आई विल गेट द वर्ल्ड कप in India again, said Virat Kohli। अभी ये जो स्टेटमेंट है, आई विल गेट द वर्ल्ड कप अगेन इन इंडिया, आई विल गेट द वर्ल्ड कप अगेन इन इंडिया, मी इंडिया मध्ये वर्ल्ड कप परत आणणार। अभी कोहली अकेला जाके लेके आएगा क्या? नो, अकेला मैच खेलेगा क्या? बॉलिंग भी वही करेगा, कीपिंग भी वही करेगा, फिर फील्डिंग भी वही करेगा, बैटिंग भी वही करेगा, अकेला कर सकता है वो? एक्चुअली वो क्या बोल रहा है, आई विल, उसने बोला खुद ने, पर वो एक्चुअली किसके बारे में बात कर रहा है? वो आई किसके लिए यूज हो रहा है वहां पर? टीम के लिए। करेक्ट, वो टीम के लिए। और टीम के अंदर भाई कितने लोग हैं? 11 प्लेयर्स। ओ माय गॉड, 5:30 गेले। आई वहां पे किसके लिए यूज हुआ है? टीम के लिए यूज हुआ है, समझा? यस सर। यस सर। इसके लिए मैं चैलेंज करता हूँ पीएचडी होल्डर्स को। लेट्स गेट बैक। So this is what exactly I we are using here for army, I we are using for team, and team contains 11 players, army contains 26 lakhs, so I will be plural only in one scenario। ये सिनेरियो के अंदर I plural रहेगा, वरना I हमेशा सिंगुलर रहेगा। समझ में आ रहा है? ओके, समझा? सर पण आपण वी पण यूज करू शकतो ना, तर वी विल बीट अमेरिका और वी विल ब्रिंग द वर्ल्ड कप। बोलायला काय पाहिजे होतं त्यांनी? काय पाहिजे होतं त्यांनी बोलायला? ते त्यांनी बोलायचं होतं इथं वी विल बीट अमेरिका, हम लोग अमेरिका को मारेंगे। पर उसने क्या बोला? आई विल बीट अमेरिका, मैं अमेरिका को बहुत कुत्ते कैसे मारूंगा, क्योंकि अमेरिका ने मेरी कंट्री को मारा है, कोरोना दिया उसको। सो वहां पे उसने क्या बोला? आई। एक्चुअली उसको बोलना चाहिए था वी। तो वहां पे आई जो था वो आर्मी का काम कर रहा है, वहां पे आई जो था वो टीम का काम कर रहा है, समझा? तो आई विल बी प्लूरल। 5:30 गेले। Now here is the rule। अब यहाँ पे आपके सामने रूल रख रहा हूं मैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। रूल इज सेइंग whenever you are making sentences with he, she, it, in English we have 7 pronouns, okay? I, he, she, it, you, we, they। while making sentences with I, you, we, they, verb के अंदर, verb मतलब यानी एक्शन, क्रिया, उसके अंदर verb प्लस नो एस नो es, verb के अंदर s भी लगाने का नहीं, es भी लगाना नहीं। फॉर एग्जाम्पल I do, you do, we do, they do, I go, I like, I make, you make, we make, she make, oh sorry, you sweep, we sweep, they walk, they write, they go, they have, etc. But
while making sentences with he, she, it singular. he, she, it singular है ना, उनके साथ में सेंटेंस बनाते टाइम पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में you have to put there verb plus s or es. verb plus s or es. For example, he does, she has, it goes, he reads, she writes, it walks, he likes, she makes, it sweeps, etc. इतना ही रूल है, बाकी कुछ he, she, it, verb plus s or es. verb के अंदर क्या लगेगा? s और es. you we they, verb plus no s and no es. verb के अंदर s और es नहीं लगेगा. he, she, it singular pronouns. करेक्ट, ये singular pronouns है. he, she, it singular pronouns. verb plus s और es. you we they plural pronouns है. verb plus no s no es. no s no es. समझा? फॉर एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? रूटीन के लिए. वी आर यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर रूटीन. फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम मेकिंग सेंटेंसेस विद आई. अब मैं आई के साथ में सेंटेंस बना रहा हूं. सो आई, जस्ट अ मिनट, हाँ प्लीज. आई, you, we, they, verb plus no s no es, he, she, it, verb plus s और es. अब मैं I के साथ में सेंटेंस बना रहा हूँ. I plus verb. verb लेना है हम लोगों को. verb मतलब यानी क्रिया. अब verb के 3 फॉर्म्स होते हैं. ओके, verb के 3 फॉर्म्स होते हैं. आप लोगों को जो मैंने याद करने के लिए बोला था, आपको लर्न करने के लिए बोला था, I, तो आपको फर्स्ट फॉर्म लेना है verb का. ओनली द फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव फॉर्म. अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सेंटेंस के अंदर एक I come. मैंने verb लिया come. come म्हणजे ये नहीं. I प्लस वर्ब कम. वर्ब प्लस एस और es नो, कुछ नहीं लगाना है. आई यू वी दे के साथ में वर्ब के अंदर नो एस नो es, नो एस नो es, एस और es लगाना नहीं. आई कम, सेंटेंस फिनिश हो गया. इतना ही है सेंटेंस. मैं आता हूँ, आई कम, आता हूँ मैं. हाँ, आपको खाली उसको सेंटेंस को बड़ा करना है तो आप कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई कम टू college, I come to class, I come to class, I come to college. Okay, next one. अब मैं सेंटेंस बना रहा हूँ. you के साथ में सेंटेंस बना रहा हूँ मैं. you के. okay, you प्लस verb. मैं verb ले रहा हूँ you के साथ में. you प्लस verb go. you go to. verb प्लस no s no es. verb के अंदर कुछ नहीं लगेगा. s भी नहीं लगेगा, es भी नहीं लगेगा, कुछ लगाना नहीं. come is the verb और वो verb के अंदर s और es कुछ नहीं लगाना है. You go to class, go is verb, verb के अंदर no s no es. ध्यान से देखना वरना भूल जाएंगे. ध्यान से देखना, जाना मत मीटिंग छोड़कर वरना लटक जाएंगे. आगे मैं और भी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ. You go to class, you plus verb, verb plus no s no es. Next one, we. अब मैं सेंटेंस बना रहा हूँ we के साथ में. we म्हणजे आम्ही. For example, we learn. learn क्या है? verb है. आम्ही वाचतात. काय? आम्ही स्टडी करतात. we learn English. लर्न काय आहे तिथं वर्ब आहे. वर्ब प्लस नो एस नो es. वर्ब मध्ये काय एस और es टाकायचं नाही. आय यू वी दे, वर्ब प्लस नो एस नो es. यू लर्न इंग्लिश, तुम्ही इंग्लिश शिकताय. नेक्स्ट वन, दे. अब मैं सेंटेंस बना रहा हूँ. दे म्हणजे ते. दे वर्ब इज देयर प्ले, म्हणजे ते खेळतात. दे प्ले क्रिकेट. ते क्रिकेट खेळतात. कितना इजी है इंग्लिश, देखो कितना इजी है, कितना इजी है. दे प्ले क्रिकेट, ते क्रिकेट खेळतात. सिंपल, सेंटेंस खत्म हो गया उधर. फिनिश. नेक्स्ट वन. अब मैं सेंटेंस बना रहा हूं सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में. सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में. फॉर एग्जाम्पल, ही म्हणजे तो मुलगा. सिंगुलर है ना, सिंगुलर. ही शी इट, वर्ब प्लस एस और es. वर्ब के अंदर क्या लगाने का? अभी एस और es लगाना है आपको. वर्ब के अंदर आपको लगाना है एस और es ही शी इट के साथ में. फॉर एग्जाम्पल, ही. अब मुझे सेम वर्ब ले रहा हूं मैं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन नहीं हो. हाँ, बाहर से पहले पानी लेकर जल्दी से. सॉरी. सो अब मैं सेम वर्ब ले रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ही, अब कम आएगा वहां पर. मैंने लिया वर्ब कम. हाँ, ध्यान दो प्लीज. ही, मैंने लिया वर्ब, वहां पर वर्ब प्लस एस और es. अब यहाँ पर क्या करना है? दिमाग लगाने का. ही कम आया, कम का हो जाएगा कम्स. समझा? ही कम्स टू द गार्डन. तो गार्डन ला ये तो. ही कम्स टू द गार्डन. सेंटेंस फिनिश. अगर मैंने एडवांस वाले करके होशियारी मार के ही कम टू द
गार्डन लिखा, गलत हो जाएगा वो, गलत होएगा वो। दिख रहा है आपको कम के नीचे अंडरलाइन दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है कम के नीचे अंडरलाइन? क्योंकि वो Yes, sir. गलत हो गया है, Yes, sir. गलत हुआ है वो, क्योंकि क्या होना चाहिए था, ही कम्स। अब मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ सजेशन पे, देखो वहां पर क्या लिख के आ रहा है, ही केम टू क्लास, अदरवाइज ही केम टू द गार्डन, वहां पे कम्स नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। नाउ अब मैं ले रहा हूँ सेंटेंस Sir, इसके साथ में, excuse me, sir. yes, या Sir, he comes to the garden. ये the क्यों आया सर यहाँ पे? He comes to garden भी आ सकता है ना? नहीं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एंड द लगना चाहिए। वो क्यों है मैं आपको आगे बताऊंगा, डोंट वरी। थोड़ा सा अभी इसको अपन फोकस नहीं कर रहे हैं, हम अभी फोकस अपना टेंस के ऊपर कर सर रहे हैं। मैं बट बताता यही सेंटेंस में he comes to college आ सकता था ना? He comes to college. हूं। हाँ बोल Okay, सकते हैं, वो एक आइडिया है। मैं बताता हूँ आपको क्यों आने वाला है। अभी वो कार्तिक ने मुझे आते के साथ में वही पूछा था, सर द का रूल कब कराने वाले आप? तो द का रूल अपना नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाला है, ट्यूसडे के दिन, एब्सेंट मत रहना। Okay, ओके, सो बाय द वे, he, she, it, verb plus s or es. And now I'm making sentences with she. She plus verb. अब मैं she के साथ में verb ले रहा हूँ go. Same verb ले रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में easy जाए। Verb plus s और es आएगा ना यहाँ पर, तो मैंने खाली इसका s को रेड कर देता हूँ। She goes to college. अब she plus verb. Verb is there go. Verb plus s और es. अभी आपने थोड़ा डोका लगाने का, दिमाग लगाने का सोचना है कि verb के साथ में कौन सा लगेगा। She go का क्या हो जाएगा? goes. करेक्ट, Yes. goes. Yes. ES लगेगा। ES ही क्यों लगेगा? कितने लोग सोच रहे हैं ऐसा? कितने लोग ऐसा थिंक दैट पीपल आर थिंकिंग दैट व्हाई ओनली ES पुटिंग देयर? because sir GOS नहीं आएगा ना, goes आएगा. Go goes क्यों नहीं आएगा? past. क्यों नहीं आएगा? बंदो यहाँ पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। कौन आंसर देगा? चलो देखेंगे अभी कौन आंसर देगा, उसको मैं एक रिवॉर्ड देने वाला हूँ। Sir गो के go. अंदर ES ही लगेगा, S नहीं लगेगा, ऐसा क्यों? Sir go goes. वैसा है ना सर आपण काय उसका. बोलणार तिथं? गोज नाही बोलू शकत, तिथं आपल्याला ESच लावायचं आहे। का बरं? शिवदास, प्रदीप, चैताली, कार्तिक, कन्सोनंट सर, ईशान, कन्सोनंट्स आणि आंकित, वॉवल. कसं टोकतो मी, शिव, ज्योत्सना मॅम, सानिया मॅम, किरण भाऊ शेठ, Sir go का past आएगा ना सर वो. पास्ट गो का वेंट होता है Sorry मेरे sir. भाई। Sorry sir. यस, अपॉर्चुनिटी, रिवॉर्ड मिलने वाला है, जबरदस्त रिवॉर्ड मिलने वाला है। यस, जल्दी। इसके लिए बोला था मैंने एब्सेंट नहीं रहना, और जो भी मैंने पढ़ाया है वो आने वाले लेक्चर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जो भी बंदे एब्सेंट रहेंगे लटक जाएंगे। हियर इज द आंसर। आपको याद आ रहा है मैंने सिंगुलर प्लूरल पढ़ाया था? द नाउन्स व्हिच आर एंडिंग विद हिसिंग साउंड्स प्लूरल विल बी एंडिंग विद Yes. एस। ओ माय गॉड, ओ से एंड हो रहा है और वहां पे क्या लगाना है? Yes. रिवॉर्ड गेला। आधी 5:30 गेले, आता रिवॉर्ड गेला। आई शपथ आले, मी जगात का आहे? काय करतोय मी या जगात? मी काय करतोय? माझं कामच नाही इथं, फाले फुकटची गर्दी करतोय मी इथं। अगं आई, मी गर्दी करतोय इथं। थैंक यू सो मच मैम। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ओ के साथ में एंड हो रहा है, यस लगेगा। सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल है, सिंपल। सो ही गोज, गो का क्या हो जाएगा? गोज। ही गोज टू क्लास, वो क्लास को, शी गोज टू क्लास, वो क्लास को जाती है। नेक्स्ट वन, सेंटेंस विद इट। इट के साथ में सेंटेंस बना रहा हूं मैं। इट वी यूज फॉर एनिमल, थिंग्स, बेबी एंड प्लेसेस। दिमाग से लगाना है कुछ भी एक वर्ब। ओके, इट प्लस वर्ब। अभी इट के साथ में मैं सेंटेंस बना रहा हूँ। फ्लाई, इट मैंने वर्ब लिया फ्लाई, वो उड़ता है। रूटीन है ना, कौन? कबूतर। इट फ्लाई। सो फ्लाई का क्या हो जाएगा? वर्ब प्लस एस और ES। अब यहाँ पे क्या लगेगा? IES. एक्झॅक्टली, व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड। IES का लावला? अरे तिथं होतं, तिथं नव्हतं, तिथं एस आणि ES होता। थोड़ा दिमाग लगाने का। फ्लाई का क्या हो जाएगा? फ्लाइज, बिकॉज द वर्ड इज एंडिंग विद वाई, प्लूरल विल बी एंडिंग विद Yes. IES। ओ माय गॉड, अगर आपको मैं बेसिक अगर नहीं पढ़ाता तो क्या आपको समझता था ये? No. No sir. बहुत सारे मेरे पास में ऐसे एडवांस स्टूडेंट आते हैं, आई नो इंग्लिश वेल बट आई नो बेसिक, बट यू हैव टू टीच मी ओनली क्लास लेवल ग्रामर। ओ माय गॉड, रियली? ओ श्योर। अभी उन लोग को मैंने फ्लाई का फ्लाइज क्यों आया? ते आम्हाला माहित नाही।
May God help them. So it flies where? In the sky. It flies in the sky. वो हवा में उड़ता है. Yes or no? It flies in the sky. Any doubts? Any doubts? Sentence ऐसा बनेगा simple. सर present वहां tense. पे सर आई क्यों आया सर? किसमें? फ्लाइज IES. ओके ओके सर, वो उसमें वाई एंडिंग विद Pronounced वाई. with ओके I. यस. ये वाला. ओके. Any doubts to anyone? भाई किसी को कुछ पूछना है? Any questions? Yes. सिंपल सेंटेंस अपने को बनाना है, ज्यादा कुछ दिल पे लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं. ओके, वर्ब प्लस सी आई यू वी दे, वर्ब प्लस नो एस नो ईएस, ही शी इट, वर्ब प्लस एस और ईएस. इतना ही रूल है, बाकी कुछ भी रूल नहीं है. While making sentences with I, you, we, they, verb plus S or ES, he, she, it, verb plus no S, no ES. Sorry, he, she, it, verb plus S or ES, I, you, we, they, verb plus no S, no ES. This is the main rule. अब इसके ऊपर सेंटेंस आप लोग को बनाना है वन बाय वन. उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मेन सिंपल प्रेजेंट टेंस आप लोग बोलेंगे कैसा. And this is what my guarantee, my dear friends, that tomorrow all of you are going to speak up. कल आप लोग बोलने वाले, और especially ये फ्राइडे को सबके सब बोलने वाले. फ्राइडे को मैंने आप लोग को लास्ट फ्राइडे को रीडिंग लिया था, मालूम है ना? हेलो, यस. जनता सो रही है क्या? No, sir. यस सर. लास्ट फ्राइडे को मैंने आप लोग को रीडिंग लिया था, राइट? रीडिंग के ऊपर मैंने आप लोगों को बोलने के लिए बोला था, राइट? कोई भी एक टॉपिक लेना है, बोलना है. ये फ्राइडे को एक टॉपिक लेकर आओ, कुछ भी टॉपिक लेकर आओ, आपको बोलना है. सिंपल सेंटेंसेस. दिस इज अ मोबाइल, द मोबाइल इज एप्पल, द मोबाइल इज फ्रॉम कैलिफोर्निया, द मोबाइल कॉस्ट 10,000 rupees, द मोबाइल हैज 2 cameras, the front camera is 5 megapixel, the rear camera is 10 megapixel, the internal memory is 32 GB, the RAM is 2 GB, it has a home button, it has a separate volume button, it has long lasting 4 hours battery, the warranty is 2 years. आप लोग को फेंकना है, कोई भी एक टॉपिक लेना है, फेंकना है, कोई भी एक टॉपिक लेना है, फेंकना है फ्राइडे के दिन. ठीक है, फ्राइडे के दिन सबके सब बोलेंगे, तो अपना मिशन कंप्लीट होने जा रहा है, तो एब्सेंट मत रहना, बिल्कुल नहीं. सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको नहीं समझा है, प्लीज टेल मी. कितने लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं समझा है? अभी आपको सिंपल से क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाना है. सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज फॉर रूटीन. अभी आपको रूटीन बनाना है, कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए. आई वी दे, वर्ब प्लस नो एस नो ईएस. किरण ध्यान दो अभी यहाँ पर. I, you, we, they, verb plus no S, no ES. And see, one more thing would like to tell you, all of you. अभी यहाँ पे आप सभी लोग प्रेजेंट हैं, सब लोग को मेरा आवाज आ रहा है, दिख रहा है ना? यस. या. Please take it seriously because see, almost we have finished today our 1 month. अपने क्लास का completely 1 month finish हो चुका है. बाकी क्लासेस ने जो गलती किया है, बाकी स्टूडेंट्स ने जो गलती किया है, आप वो गलती मत कीजिए प्लीज. बाकी क्लासेस ने गलती किया, आप गलती नहीं करना. स्टडी मुझे बराबर चाहिए, डेली 1 hour, दैट्स इट. उसके अंदर लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग सब हो जाता है. ज्यादा कमजोर दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देने का, मैंने आपको पहले ही बोला. सो डेली 15 मिनट्स रीडिंग, 10-15 मिनट्स लिसनिंग. उससे ज्यादा होता रहेगा, अमेजिंग, यू विल गेट द रिजल्ट्स. दिस इज व्हाट माय गारंटी. अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे रिजल्ट्स नहीं मिलेगा. सो प्लीज प्रैक्टिस एट होम. ओके, अभी भी चांस है, जिसने अभी तक के टाइम पास में लिया था क्लास को, अभी टाइम पास में मत लो, प्रैक्टिस कीजिए. सेकंड थिंग, आज अपने क्लास का पूरा 1 month हो चुका है. प्लीज पे द रिमेनिंग फी. आपका 50% जो रिमेनिंग फी बाकी था कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का थोड़ा ज्यादा था. प्लीज पे द फी टुडे इटसेल्फ. ओके, जल्दी से जल्दी फी पे कीजिए. मुझे 30 से पहले मेरा फी क्लियर करके चाहिए, वरना आप लोगों को क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा. ओके, 30 से पहले 38 अक्टूबर से पहले मुझे फी क्लियर करके चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द एंट्री इनटू द क्लास. आपका क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा, और रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगा, वहां से भी इनएक्टिव हो जाएंगे आप लोग. ऑलराइट, सो प्लीज पे द फी, बिकॉज सी ऑलरेडी मेरे पास में जो है मेरे क्लास का क्राइटेरिया है, फी रहेगा तो हम लोग क्लास में काम करते हैं, नो फी नो क्लास. गेटिंग इट? सो प्लीज जिसने फी पे नहीं किया है, प्लीज पे द फी टुडे इटसेल्फ. आज के आज में फी अपना क्लियर कर दीजिए प्लीज. आपको भी हेडेक नहीं, मुझे भी हेडेक नहीं है. ऑलराइट, बोलने के लिए नहीं लगाना है. प्लीज पे द फी एज सुन एज. अभी आप सभी लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज पे द फी टुडे इटसेल्फ, द रिमेनिंग फी ऑफ योर्स. ओके, गुड. लेट्स गो. नाउ वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस. सिंपल प्रेजेंट टेंस. बच्ची है. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस,
रूल क्या है वहां पर, एक ही रूल है उसका, he she it सिंगुलर प्रोनाउन वर्ब प्लस एस और es, I you we they प्लूरल प्रोनाउन वर्ब प्लस नो एस नो es। अब मैं I के साथ में सेंटेंस बना रहा हूँ रूटीन के अंदर, रूटीन में मैं क्या क्या करता हूँ, सेम केस I go to, sorry अब मैं रूटीन स्टार्ट कर रहा हूँ। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अंसारी दरीसी, I'm a student. Today I'm going to share with you my daily routine. Generally I wake up early in the morning about 5:30. सेंटेंस हुआ कि नहीं मेरा, I wake up, I के साथ में मैंने वर्ब लिया wake up, wake up के अंदर s और es लगेगा क्या, No. नहीं लगेगा। नेक्स्ट वन, then I go to the John. What do you mean by John? Washroom, sir. Correct. Toilet. Very good. जिसने मेरा वर्कशॉप अटेंड किया था उसको मालूम रहेगा, मैंने बताया था वहां पर ये। Then I go to the John. John मतलब टॉयलेट, स्मॉल j से John का मतलब होता है टॉयलेट। अच्छे लेवल का इंग्लिश बोलने का, नॉर्मल तो कोई भी बोल सकता है। Then I go to the toilet. Go is what? Verb. Verb के अंदर s और es का लाया हुआ सना है, रूटीन के लिए यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। Then फिर मैं क्या करता हूँ, then I brush my teeth. So brush is the verb. Then I brush my teeth. Brush verb है, verb के अंदर no s no es, स्लो इसके लिए जा रहा हूँ ताकि आप लोग को पूरा डीप में समझे। नेक्स्ट, then I have a shower. आया क्या कल पढ़ा था हम लोगों ने परसों, Yes. have, Yeah. I you we they have, and he she it has. रूल क्या बोल रहा है देखो, I you we they के साथ में क्या लगने वाला है, have. Have. I you we they, I you we they have, Have. Have. and he she it, he Has. she it Had. भूलना नहीं, okay? I you they have, he she it has. So next, then I have a shower. Then I have a shower. Next, then Sir, in present tense Then- only, na? I, you, we, they सब have. simple present tense, सब simple present. Then I prepare my, नहीं मैं prepare नहीं लगाऊंगा वहां पर. Then I make breakfast. Then I make breakfast. Make क्या है वहां पे verb है, मी बनाओ तो, verb plus no s no es. Yes or no? Next, then I have breakfast. आता have कशासाठी लावला आपण इथं, I, घेतो Eating. करतो। then I have breakfast. Then फिर मैं खाना खाता हूँ। Then I eat भी आएगा ना सर, I eat breakfast. I eat भी आ सकता है, बट eat की जगह पे अभी eat बच्चे लोग बोलते हैं, अपन उसकी जगह पे क्या बोलेंगे, have बोलेंगे। eat बच्चे लोग बोलते हैं, have बोलेंगे। अहो अंकित, रेकॉर्डिंग डेली आपल्याला भेटते की, आपण ऍप्लिकेशन डाउनलोड केलं का नाही अंकित? अंकित हा सर, रोज बोलतोय मी सर। हा रोजचं रोज भेटतोय आपल्याला तिथं एका रेकॉर्डिंग नेक्स्ट डे डेली। येते ना ते, हा नेक्स्ट डे येते ना, म्हणजे आजचं उद्या येते ना सर, हा हा म्हणजे आजचं रेकॉर्डिंग उद्या येते ना? हा, कधी कधी सेम डेले पण येतात रेकॉर्डिंग। ओके सर, थँक्स। रात में आता सर, रात में 11, क्योंकि वो 11:30, 12 बजे। रिकॉर्डिंग या रिकॉर्डिंग क्लाउड पे होता है ना, तो क्लाउड की वजह से फिर क्या होता है कि वो मेरी असिस्टेंट वहां से लेकर उसको डाउनलोड करके फिर वो अपलोड उसके कर लिए देती है। टाइम लगता है सर अपलोड होने के लिए। या एग्जैक्टली राइट, क्योंकि वो 400 MB का रहता है वीडियो। सर ओके, थोडंसं सो देन आई हैव ब्रेकफास्ट। देखो मैं रूटीन बता रहा हूँ या सर थोडंसं त्याची फाईल जर कमी केली तर लगेच ते अपलोड होईल, बफरिंग खूप वेळ होतं। पण ते प्रिंट ते भंगार येईल ती, आणि स्टुडंट लोकांना दिसणार नाही मॉर्निंग लिहिलाय का मॉर्निंग लिहिलाय, मग नंतर ते काय होईल Okay. माहिती का, असं होऊन जाईल, लिहायचं होतं गुड मॉर्निंग सर आहे का नाही, आणि दिसणार काय ते गुड मॉर्निंग सर। व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्निंग? ओके सर। मातम करने। अरे गेला रे एकटाच होता रे तो, बोलना चाहिए था मॉर्निंग हो जाएगा वो मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग सर, तो उल्टा नहीं होना चाहिए, क्वालिटी बेस्ट चाहिए अपने को, इसके लिए अपन वो जितना जा रहा है ना, बड़ा तो बड़ा वीडियो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्टूडेंट लोग का नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके, देन आई हैव ब्रेकफास्ट। सर इसके बाद में सर मुझे खाली 10 वीडियोस दिखते। यस्टरडे मैडम का आप जो चेक कहाँ कर,
आप चेक क्या करती है? मुझे एक काम कीजिए आप ना, सी व्हाट डू वन थिंग, कैम्ब्रिज ट्यूटोरियल पे करती हूँ सर मैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सर इसीलिए मैंने आपको सर बोला था कि आप एक बार ये यूज कैसे करते हैं ना वो आप वो दिखाइए, क्योंकि सर चलो मैं भी काफी ये कंफ्यूज होता हूँ सर। अभी लेक्चर के बाद में बताता हूँ। 5 मिनट डेट में भी नहीं आपको, होती समझ। नहीं टेंशन लेने का नहीं, मैं आपको ना लेक्चर के बाद में बता देता हूँ डायरेक्टली, डोंट वरी, लेक्चर के बाद में बता देता हूँ आपको। देन आई प्रिपेयर माई सेल्फ, फिर मैं अपने आप को तैयार करता हूँ। देन आई गो टू कॉलेज, फिर मैं कॉलेज जाता हूँ। देन आई टीच देयर फॉर 3 hours. Then फिर then I come back my home, फिर मैं वापस मेरे घर आ जाता हूँ। So then I prepare myself, prepare verb है, verb plus no s no es, okay. Then I go to college, फिर मैं college जाता हूँ, verb plus no s no es. Then I teach there for 3 hours, teach is verb plus no s no es. Then I come back my home, then I come back home, okay. Come is what? Verb. Then I come back home, come is verb plus no s no es. Any doubts? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसा यूज होता है। सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है, सिंपल ओके। आपको एक वर्ब लेना है, सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जांपल आई गो टू कॉलेज बन गया सेंटेंस। आई गो टू द मार्केट, आई कम टू द मॉल्स, आई विजिट माई रिलेटिव्स, आई ब्रश माई टीथ, रूटीन है डेली का। आई स्लीप एट नाइट, रूटीन है। आई हैव ब्रेकफास्ट, रूटीन। I have a pizza every weekends, routine. I have a shower, routine. I play PUBG, routine. I can good do. Everything is routine. Any doubts? सर इन सेंटेंसेस यहाँ पे सर बहुत बार देन यूज हुआ है तो चलता है सर हाँ, वो ऐसे? routine है ना, तो मैंने उसको क्या किया है मैं बता रहा हूँ। Then I do this one, then I do that, then I do that. ये एक्चुअली मैंने रूटीन बनाने की कोशिश किया हूँ, आधा ही बनाया मैंने, वो आपको बताऊंगा मैं कैसे बनाते हैं। पहले हम लोग सेंटेंसेस करेंगे। ओके सर। किसी को कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे इसके साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस के? यस, एनी डाउट्स? चलो ठीक है, आप लोगों में से मैं एक काम करता हूँ, जस्ट अ मिनट प्लीज, ओके। मैं शेयरिंग एक्सेस दे रहा हूँ। आप लोगों में से कोई तो एक इंसान, आप लोगों में से कोई एक स्टूडेंट आपका स्क्रीन शेयर कीजिए। मैं एप्लीकेशन के बारे में आपको बताता हूँ कैसे यूज करते हैं एप्लीकेशन, वो रिकॉर्डिंग कैसे देखना है, एप्लीकेशन कैसे यूज करना है। कौन शेयर करेगा? मोबाइल का मैं स्क्रीन शेयर? तो डेस्कटॉप पे हूँ सर। नहीं, दूसरा मैं कोई करूँ रहेगा सर? कोई? सर मैं हाँ करूँ? मैम, कीजिए, मैंने एक्सेस दिया। देखो मैं आप लोग को सबको एक बार एप्लीकेशन कैसे यूज करते बता देता हूँ, ओके। एंड प्लीज पे द फी ऑल ऑफ यू, ओके। मैडम डेस्कटॉप पे आप? हाँ सर, लैपटॉप पे हूँ। एप्लीकेशन किधर है अपना? 1 मिनट सर। एप्लीकेशन फोन पे है सर, लैपटॉप पे नहीं है। हाँ, फोन का स्क्रीन शेयर करो मैम। फोन से मीटिंग कनेक्ट करो अपना और फोन ओके का स्क्रीन शेयर करो। ओके सर। ये वाला कट कर दो। ये फिर कोई और करेगा भाई स्क्रीन शेयर जल्दी से? यस सर, आई विल ट्राई सर। या जस्ट ट्राई प्लीज फास्ट। मी करूँ का सर? जिसका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क रहेगा अच्छे से फटाक से कर सकता है, जल्दी करो, मैं आपको बता देता हूँ फिर। करो भाई। जूम कितने लॉगिन लोगों? नहीं है मोबाइल में सर मेरे। ओके शिवदास, एप्लीकेशन ओपन करा शिवदास आपला? कैम्ब्रिज ट्यूटोरियल्स,
नीचे बैचेस पे क्लिक दिख रहा है आपको, नीचे बैचेस ऑप्शन दिख रहा है, बैचेस आप लोग को यस सर। नीचे होम के बाजू में, उस पर क्लिक करो शिवदास। Yes, sir. स्क्रीन पर देखो आप लोग को बैचेस दिख रहा है, यस बैचेस पर क्लिक करा जरा। हाँ आपली क्लास आली का, बॅचेस आली का आपली 6 PM, क्लिक ऑन दॅट, व्हेरी गुड. आता आहे बघा वर काय लिहिलेलं तिथे, ओव्हरव्ह्यू, अटेंडन्स, असाइनमेंट, त्याला स्क्रोल करा जरा. हाँ स्क्रोल करा, अनाउंसमेंट, नेक्स्ट अटेंडेंस, असाइनमेंट, अनाउंसमेंट, टेस्ट, वीडियोस. हाँ आली का वीडियो, अब दिख रहा है आप लोग को यहाँ पर वीडियो, देखो सब आया वीडियो. चैप्टर 1 वीडियो, चैप्टर 2 बेसिक ग्रामर, चैप्टर 3 फोनेटिक सिंबल्स, चैप्टर 4 सिंगुलर प्लूरल. खाली दावा जरा, खाली गया. चैप्टर नंबर 5 काउंटेबल अनकाउंटेबल, चैप्टर नंबर 6 वहां पे देखो नीचे लिखा है रीडिंग एंड स्पीकिंग. रीडिंग स्पीकिंग पे क्लिक करो, देखो रीडिंग स्पीकिंग अपना एक लेक्चर हुआ था वो वहां पे मैंने डाल दिया है. अभी अपना सेकंड लेक्चर आएगा वो भी उधर ही आएगा. बैक जाओ शिवदास, गो बैक, वेरी गुड. ओके ओपन फोनिक्स, चैप्टर 3 फोनिक्स, फोनेटिक्स, साउंड्स. वेरी गुड. देखो साउंड के दोनों भी लेक्चर है वहां पे, दिख रहा है आपको दोनों लेक्चर उधर. यस सर. बैक साइड जाओ, वापस बैक जाओ शिवदास, 1 मिनट प्लीज. बैक गया जरा, वेरी गुड. अभी उसके अंदर एक काम करो, सिंगुलर प्लूरल को ओपन करो, चैप्टर 4. वेरी गुड. दिख रहा है आप लोग को सिंगुलर प्लूरल के पूरे चैप्टर्स, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है पूरा. यस. पूरा डिटेल में दिया है. तो आप एक वीडियो को, जैसे मैंने पूरा पोर्शन आपको पढ़ाया है बेसिक से लेकर, तो आप लोग पूरा वहां से स्टार्ट कर सकते हैं. बैक गया जरा, तो अपना जो पहला चैप्टर मैंने सबसे लिया था, तो चैप्टर 1 के नाम से उसका फोल्डर है. वर गया, वर दिख रहा है आपको चैप्टर 1, ओपन करा चला. अब वो चैप्टर 1 में फर्स्ट वीक में मैंने आपको क्या पढ़ाया था सबसे पहले, सेल्फ इंट्रोडक्शन, कॉन्वर्सेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऑफिशियल, सेइंग थैंक यू. दिख रहा है आपको सेल्फ इंट्रो, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऑफिशियल, थैंक यू. नंबर वाइज देता हूँ, देखो मैं उधर 1 2 3 4 5, तो आप लोग नंबर वाइज वीडियोस देख सकते हैं. समझ ला अंकित, ज्योत्सना मैम. हो सर, थैंक यू. नेवर माइंड. सो आप लोग को बैच के अंदर जाना है. बैच में जाने के बाद में फिर आपको वहां पे स्टडी मटेरियल के अंदर वीडियोस मिलेगा, ठीक है. माहित नव्हतं सर, थँक यू. हाँ नेवर माइंड, अरे चलता है, नया Thank you, sir. एप्लीकेशन, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग को. सर ये टोटल but, कितने वीडियो, क्या बोले, टोटल कितने वीडियो है सर? ये डेली के वीडियोस डालता हूँ मैम मैं. अभी जो भी, अभी जैसे फॉर एग्जांपल सी, अभी आज का टॉपिक क्या था अपना, टेंस था. अभी यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे एक नया फोल्डर मिलेगा आपको ऐसे ब्लू कलर का. तो वहां पे वो फोल्डर पे लिखा रहेगा टेंसेस, और उसके अंदर पहला वीडियो आएगा, वीडियो नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलकर. अभी टेंसेस के जितने भी लेक्चर होंगे ना, आपको सब उधर दिखेंगे वो. नहीं सर, सर, ये- मुझे टेंसेस के नहीं दिखते सर, मुझे खाली सर इतने दिखते हैं. हाँ तो आप क्या कीजिए, आपके पास में बैच है ना मैम, ये वो बैच हाँ. के अंदर जाना है, और ऊपर देखो वीडियोस वगैरह दिख रहा है आपको, ऊपर लिखा हुआ है सर असाइनमेंट्स. वॉच वीडियो है ऊपर. नहीं, वो नहीं. ज्योत्सना मैडम, हेलो. हाँ हेलो बोलिए सर. होम के बाजू में बैचेस है ना, नीचे में देखिए होम, बैचेस, स्टोर, हाँ, हाँ, चैट, हाँ. प्रोफाइल, बैचेस पे वहां पे आप क्लिक कीजिए. ठीक सर. और फिर आपको ये दिखेगा, फिर मैम दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, स्पेशल बैच सितंबर हाँ 2000. हाँ सर, हाँ सर. हाँ उसके ऊपर क्लिक करो फिर आप. क्या सर? अब अंदर जाएंगे ना आप, शिवदास आज गया जरा. अब आप जैसे अभी अंदर आए, आप यहाँ पर आए, यस सर. ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे टेस्ट लिखा है, टेस्ट, वीडियोस, लाइव क्लास वीडियोस, असाइनमेंट्स, हाँ सर. कंटेंट. उसमें वीडियोस में जाओ मैम, हाँ अभी सर, अभी दिखाई दे. पूरा दिख रहा है अभी आपको. हाँ चैप्टर 1 2 3 4 एंड 5 दिख रहा है. अब वहां पर आज वहां पे एक फोल्डर आने वाला है टेंसेस बोलकर. ओके सर, वो मैं भी ये नहीं आपको- देख रही थी सर. नहीं वो भी आपको मिलेगा, सब पूरा वीडियोस आपको, लेक्चर का पूरा वीडियोस मिलेगा वहां पर.
ओके अपने एक एक लेक्चर रिकॉर्ड हुए और वो सब लेक्चर रिकॉर्ड होकर आपको वहां पर मिलेंगे, तो सब लोग प्लीज देखिए उसको, आपका स्टडी डबल हो जाएगा और आप लोग को प्रोग्रेस बहुत जल्दी मिलेगा। सर ये आपने होम पेज पे वीडियोस सर अपलोड किए हैं सर, होम पेज पे भी, ये कौन से वो वीडियोस हैं? सबके लिए, वो सबके लिए, वो फुकट है वो। आप जो भी आपका अच्छा। दोस्त रहेगा ना जो बोलेगा अरे यार मला इंग्लिश शिकायचे पण माझ्याकडे पैसे नाही, उसको बोलने का एप्लीकेशन डाउनलोड कर और सीख। वहाँ पे बुक्स भी दिया है मैंने होम पेज पे, वीडियोस ओके भी सर। दिया है, तो वो सबके लिए फ्री है वो बाकी कोई भी बाहर का रहेगा ना उसके लिए फ्री है वो कर सकता है वो। ओके एंड सी वन मोर थिंग, सर मेरा लॅपटॉप मध्ये नाही करणार का? लॅपटॉप मध्ये नाही सांगता येत ना, लॅपटॉप मध्ये काय सांगता येत नाही, पण मोबाइल मध्ये तर चालणार ते। एंड दूसरी बात, मेरा एक वेबिनार होने वाला है संडे के दिन। ओके इफ यू हैव योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स एक्वेंटेंसेस सो यू कैन इनवाइट देम। ओके फर्स्ट नाउ विल सी यू टुमारो। Yeah, sir. Cheerio. Thank you, Thank sir. you, sir. Yes, sir. Yeah and please pay the fee. Bye bye. Yes, goodbye.